مزید ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے پی کے نور ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہوں قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ ابو لہب بیٹھا بیٹھا پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے ساتھ تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرت نہ تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، تمہارے قضا چکاتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل و منصف سمجھ کر اپنے اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ ایک اور اہم زبان، جس وقت وہ عمار کو لے کر آئے، میں غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا، اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کہ سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر جھکائے رکھنے میں ہے۔ لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہ تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے رمز سے آشنائی ہوتی۔ وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اپنا حق طلب کر رہا ہو، بالکل آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر سب پر ہے، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ میں دیوار سے پشت لگائے ہوئے عمار کے یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر سوجھی کیا؟ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے۔ لیکن تو نے تو ایک فکرے میں وہ ساری کی ساری بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی جس پر مکے کے مردم آزاد احتسالی معاشرے کی عمارت تعمیر تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی، اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبش ابرو سے کام چل سکتا ہو وہاں وہ زبان کبھی نہیں ہلاتا تھا۔ لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اسی دھیمے انداز سے دھوکہ کھا گیا تھا جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اس سے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ! ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں بھرلاتے ہیں۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں یاد نہ ہوتا کہ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات ہی بدل گئی تھی۔ محمد کو احساس نہیں کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہے اور ہمارا ذریعہ معاش بھی۔ اور کیا ہم لوگ غریبوں
कमज़ोरों की निगहदाश्त नहीं करते। अबू सुफियान कहते कहते रुक गया, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में, जैसे बड़े बड़े मुकर्रर कोई बात कहकर तासुर पैदा करने के लिए थोड़ा सा वक्फा देते हैं। अगर हम 360 खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मानने लगें जो नजर भी नहीं आता और जो हर जगह बताया जाता है, इस बाग में, ताइफ में, मदीने में, यरूशलेम में, चांद पर, तो फिर मक्का कहाँ जाएगा? जब हर घर में खुदा होगा तो यहाँ कोई क्या करने आएगा? इस मंतक पर हर चेहरा मुतमईन नजर आ रहा था। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती और किसी पर कोई अजाब ना नाजल होता, मगर शुमाई किस्मत के मेरे आका ने अचानक मुझे इस मामले में उलझाने का फैसला कर लिया। उमैया अब तक खामोश बैठा था, मेरी पुश्त पर खड़ा दीवार की तरह साकत, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी पुश्त पर कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आका के मुंह से अपना नाम सुनकर दौड़ पड़ा था। उमैया अपने रेशमी मलबूस के लहराते हुए घेर में उमार के पास पहुंचा। तुम कहते हो कि एक गुलाम का रुतबा उसके आका के बराबर है? वो तेजी से चलता हुआ उमार के पास आकर यकायक रुका तो इसके रेशमी उबा पर लहरा कर एक लम्हे के लिए इसके गिर्द लिपट गई। सियाफाम बिलाल जैसे मैंने अपने पैसे से खरीदा है मेरे बराबर है? ये कहकर वो रुका और बगल में खुद अपने सवाल की मकबूलियत का लुत्फ उठाने लगा। मैं बिलाल उस सारे खजान से अलग था, मेरा किसी बात से कोई सरोकार ही ना था, और हो भी क्या सकता था? मुझे तो ख्वाह बीच में घसीट लिया गया था। मैं गुलाम इब्ने गुलाम, मुझे क्या कौन किसके बराबर है या नहीं? मैं तो कुछ था ही नहीं, किसी के बराबर, न बेहतर न फरतर। मेरी नज़र में मेरा कोई वजूद होता तो मैं अपने आप को किसी पैमाने से नापता भी। मैं तो था ही नहीं। उमैया के अल्फाज में गुस्सा भी था, तंज भी, और इस तंजिया लहजे में ये सवाल पूछते हुए वो अपना हाथ एक प्याले की सी शक्ल में उमार के मुंह के पास ले गया, बिल्कुल मसखरों के से अंदाज में। सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो शायद मुझे इस पर हंसी आ जाती। उमैया को जवाब का इंतज़ार नहीं था, उससे जवाब की ज़रूरत भी ना थी। ऐसी बात का जवाब हो भी क्या सकता था? लेकिन उमार की आकबत नाअंदेशी के वो उस सवाल का भी जवाब देने को तैयार हो गया। मोहम्मद कहते हैं अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, ख्वाह वो किसी नस्ल किसी रंग के हों। महफल पर फिर सन्नाटा छा गया। फिर मैंने अपने आका की आवाज़ सुनी, बिलाल। मुझे क्या खबर थी कि इस दफ़ा मेरा नाम इसलिए पुकारा जा रहा है कि मुझे एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी मिलने वाली थी। बस अल्लाह ही है जो जानता है कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। एक सानिये में मैं तामील हुक्म के लिए हाजिर था। बिलाल, इसको बताओ कि तुम, मैं और एक रईस मक्का में क्या फ़र्क है? ये लो और मार मार के इसका चेहरा मस्ख कर दो ताकि इसे सबक मिल जाए। ये कहकर उसने कोड़ा मेरे हाथ में थमा दिया। कैसा वाज़ेह हुक्म था, कितना मुख्तसर और जामे। मैं आज तक इन फिक्रों की जामियत का अहाता नहीं कर सका। सोच में जुल्म की इंतहा, मगर लफ्ज़ कितने थोड़े से, कैसे गिने चुने। मकसद में तशद्दुद की लामतनाही गुंजाइश, मगर फिक्रे कैसे बरजस्ता, नपे तुले। उमार ने ज़मीन पर औंधे पड़े पड़े सर उठाकर अपना चेहरा मुझे सज़ा के लिए पेश कर दिया। अगले लम्हे क्या हुआ ये मैं शायद कभी बयान ना कर सकूं। आज भी जब मैं इस लम्हे का तसव्वुर करता हूं तो मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगती हैं और मुझ पर सख्ता सा तारी होने लगता है। मेरा ख्याल है कि शायद वो लम्हा अपने वजूद की पूरी वसातों और पहनाइयों के साथ मेरे जहन में महफूज ही नहीं है। उमैया की आंखें जो गुस्से से बाहर निकली पड़ी थीं, और अबू सुफियान का निसफ चेहरा, क्योंकि इसने नज़रें दूसरी तरफ फेर ली थीं। अबू सुफियान सज़ा देने का कायल था, मगर उसमें बराह रास्त शिरकत को वो अपने मनसब से गिरी हुई बात समझता था। लेकिन उमार साफ मेरी नज़रों के सामने था। वो टकटकी बांधे मुझे देख रहा था। इसकी नज़रों में पाकीज़गी थी, सुकून था, बेखौफी थी। सरतापा, मजबूर मगर पुरअज़म। मैंने उसकी आंखों में एक ऐसी कुव्वत देखी जो मुझे अपनी गुलामी के बंधन से भी ज़्यादा ताकतवर महसूस हुई। ठीक इसी लम्हे उमैया का गुलाम बिलाल
किसी और का गुलाम हो गया। मैंने कोड़ा हाथ से गिरा दिया। सब ने बैक वक्त एक आवाज के साथ अंदर की तरफ सांस खींचा। मुंह खुले हुए थे, चेहरे हैरत ज़दा। जो उन्होंने देखा था इनकी समझ में आ गया था। जो मैंने किया था मुझे मालूम था। ये गुलाम बागी हो गया था। उमर ने घसीटते घसीटते हाथ बढ़ाकर कोड़े को पकड़ने की कोशिश की और बिलाखिर कामयाब हो गया। कोड़ा पकड़कर उसने अपने लरजते हाथों से दोबारा मेरे हाथ में दे दिया और हौले हौले कुछ कह भी रहा था। इसकी सरगोशी मेरे दिमाग में चीखों की तरह गूंज रही थी। बिलाल, जो ये कहते हैं करो, बिलाल ये तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इस बार जो मैंने कोड़ा नीचे फेंका तो मेरे ऊपर जैसे नूर की फुहार सी पड़ गई। मैंने देखा कि अबू सुफियान ने उमैया को इशारा किया। मैंने हिंद की हल्की सी हंसी सुनी और मुड़कर इसकी तरफ देखा। मैं हिंद को सारी जिंदगी से जानता था, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखने की जुर्रत मुझे कभी न थी। बस उसकी कुछ झलकियां थी मेरे जहन में, जिनको जोड़कर मैंने इन्हें हिंद की शख्सियत से ताबीर कर लिया था। मुझे यकीन नहीं आता था कि आज मैंने उसे सर से पांव तक देख लिया है। उमैया का चेहरा ठहरा हुआ था। वो गैर मामूली तौर पर चुप चुप भी था। फिर एकदम मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बिलाल, अगर तुम्हें ये ज़ाम है कि तुम इंसान हो और ये कि तुम्हें भी खुदा रखने का हक है, तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे खुदा वही होंगे जो तुम्हारे आका के खुदा हैं। कोई नया खुदा मेरे गुलाम खाने में नहीं लाया जा सकता। फिर उमैया ने बाहर नज़र दौड़ाई और कहा, तुम्हारी इस्लाह करनी पड़ेगी, लेकिन आज नहीं। मैं सूरज के निसफ नहार पर आने की इंतज़ार करूँगा। आज वो ज़रा ढल गया है। पता नहीं किधर से इशारा हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने बाजुओं और गर्दन के गिर्द रस्सियों की गिरफ्त महसूस की और आनन फानन उन्होंने मुझे जिस तरह चाहा तोड़ा मरोड़ा, झंझोड़ा और जकड़ कर रख दिया। मैं गुलाम था, कभी नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन उस वक्त मैं ज़रूरत से ज़्यादा फर्मा बरदार बना हुआ था। वो मुझे जिस तरफ मोड़ते मुड़ जाता, जिस तरफ बिठाते बैठ जाता, जब कहते खड़ा हो जाता, बांधने लगते तो मैं खुद हाथ पांव आगे बढ़ा देता। अच्छी तरह मुश्कें कस के उन्होंने मुझे कमरे से बाहर धकेला और धक्का देकर गुलाम खाने के फर्श पर गिरा दिया। कल के सूरज के इंतजार में बकिया वीडियो आपको अगली किस्त नंबर 3 में दिखाई जाएगी। अगली किस्त तक हमें दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।